So good to see you again in Guru Nanak IHM Kolkata. And let me tell you that the reason of this seminar is to give you some extra knowledge on your hospitality management career. As you all know, hospitality consists of several departments like hotel industry, aviation industry, tourism industry, multinational companies, railways, banks, and obviously culinary industry is there, which comprises hospitality industry. So all of you must be knowing that Master Chef Kunal Kapoor is the mentor and brand ambassador of Guru Nanak Institute of Hotel Management since 9 years. So he is taking master classes, he is delivering lectures, and definitely he will be teaching you how to crack interviews during your final year studies. So all these knowledges you will be getting from our mentors. Apart from that, you will be learning how to cook several food items, because in your course we emphasize on culinary arts as well. In culinary arts, there are several subjects like molecular gastronomy, Indian cuisine, Chinese cuisine, Thai cuisine, French cuisine. So all these cuisines you will be learning. So our teachers will be teaching you how to cook all these things. Apart from that, you will be learning from the master chefs. So Kunal Kapoor is one of the master chefs which we hire as a mentor, as a brand ambassador, so that you can learn something extra, something out of the box. And let me tell you that this is important because hospitality industry is changing every day. New innovations, new dishes are coming out, experiments are also going on, how to preserve nutrition on the food, how to add value on the food, how to do nice garnishes so that it looks palatable, it looks decorative. So all these things you have to learn. Industry people will teach you how to make yourself fit in the hospitality industry, how to crack interviews in different organizations, because let me tell you, in Guru Nanak, lot of organizations will be coming for the campus drive. Not only from 5-star hotels, yes, 5-star hotels are obviously there, like Taj Group, Oberoi Group, Hyatt Regency, Hilton Hotels, Marriott. Apart from 5-star hotels, from various airlines, from multinational companies, from hospitals, from IRCTC or railways. So at least 100 to 150 organizations will be coming for the campus drive. So to crack those interviews, you know, competition is there. Competition is there everywhere. So to crack those interviews, you need certain extra knowledge out of the box, which master chefs will be teaching you. How to crack those interviews, how to appear for the group discussion, how to give a food trial. So all these things you have to learn. So these are the main objectives, and we are emphasizing on students learning. Not only from the college teachers, you will get or you will engage yourself in different industry professionals as your day will progress. So another objective is we have till 1 month of starting the orientation program. So you don't have to waste your time. You can utilize this 1 month by studying different articles, different publishings of the hospitality industry. You can study about different organizations like Taj Group, like Oberoi Group, like Indigo Airlines, like several organizations like Wipro, Google. So you can study about these organizations, how Taj Group is growing, what are the sectors they are covering, how many organizations are there, how many brands are there in Taj Group. Suppose Marriott Group, how many brands are there under Marriott Group.
because Marriott has different brands to cater different sectors of the pupil. JW Marriott, Ritz Carlton, Courtyard by Marriott. So all these things you can start learning. You can use Google, and you can use other platforms like ChatGPT. Nowadays it's very famous, and students are using this to gather extra knowledge. So you can use technology to learn about these organizations so that you can stay ahead in the competition. That is also important. And during campus drive, one more thing is there which is called group discussion. So you can study newspaper daily to be abreast of the current affairs, because current affairs is also important. You read newspaper on a daily basis, maybe Times of India, maybe the Economic Times, because economics is also important. Let me tell you, to excel in your career path, apart from your core departments, we have to emphasize on two other departments. One is economics and the other one is sales and marketing. These two departments are also important, because whatever you are doing, you have to do the marketing as well. Whatever you are doing, you have to do the sale as well. Why? Because the important thing is that you are entering into the hospitality industry. So your first job will be to show everyone that I have already entered into the hospitality industry. Maybe through social media, maybe through LinkedIn. You can prepare one LinkedIn profile of your own to show the employers that I have entered into the hospitality industry, to showcase your skill. Maybe later on, suppose you are preparing some dish, you can post it in your social media that I have made this. So these things will attract to your employers. Okay, so this will help you in the near future. So engaging in the social media, engaging in other websites will be helpful for you. So these things are important. You can start now or from today onwards, so that you are aware of these important things. So without much delay, I'd like to say one thing, that today we have Master Chef with us, and he will be sharing his knowledge to you about the career in the hospitality industry, what hospitality industry is all about, and how you can excel your career path in flying colors in the hospitality industry. So I hope all of you must be knowing Master Chef Kunal Kapoor. How many of you know? Yes, sir. Very good. So Master Chef, the session is with you, and students are eagerly waiting to listen from you. Thank you. Thank you. Hi, good morning everyone. Good morning, sir. Very good. This side is slow. Good morning. Good morning. Now they are fast, you are slow. कोई नहीं, synergy सबकी मिल जाएगी. All right, so I believe you still are in school, or you have passed out? Passed out. Right? And once you pass out your 12th, there is always a bit of a confusion, right? What to do next? Yes, no? Yes. सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन डालता है? हाँ, परफेक्ट. कौन बोला? वेरी गुड. दिल से बोला, दर्द निकला से. And there is all of a sudden 11वीं 12वीं तक things are fun, easy in many ways. Difficult, but you have to study and everything. But easy. Now all of a sudden you see half your friends are already enrolled in college, and some of them have got through more than one college, 2 streams, 3 streams, they've got selected. And some of you are like, I don't know where I am. Yes or no? कौन इस बोट में? Where you feel कह रहे मेरा दोस्त उसका ये हो गया और अभी मेरा एडमिशन नहीं हुआ. कौन है? हाथ खड़ बेटे. ऐसे हाथ थोड़ी ना होता है, ऐसे होता है. हाँ, अच्छा, बाकी सब सॉर्टेड है? हाँ, सबके एडमिशन हो गए? वेरी गुड. कहाँ हुए? गिव मी एन एग्जाम्पल. अच्छा, विच कोर्स? BA. Okay, so you always wanted to do BA. So what did you wanted to do? I want to come in the hotel industry, like aviation. Okay, aviation and hotel industry. So BA आपने कर लिया कि मतलब you kind of secure कि कुछ तो होना चाहिए, right? What else? You tell me. हाँ, कहाँ एडमिशन लिया आपने भी? एडमिशन कहाँ लिया अभी आपने? एडमिशन हो गया आपका? कहाँ पे? यहीं पे?
अच्छा हो गया, और कोई आपका? ओ यहाँ पे सबने एडमिशन ले लिया? फैंटास्टिक, परफेक्ट। सो नाउ दैट यू आर हियर, सबकी एक्सपेक्टेशन क्या है, या सबने क्या सोच के ज्वाइन किया? एंड आई वांट दिस इंटरैक्टिव, यू नो, जितने ज़्यादा आप इंटरैक्टिव होंगे उतना अच्छा है। रेज योर हैंड एंड डू वी हैव एन एक्स्ट्रा माइक? ओके, जस्ट बी लाउड। हाँ, टेल मी योर नेम एंड देन। मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, मेरा भी आपकी तरह शेप बनना है, लाइफ में कुछ करना है बढ़िया अच्छा। अच्छा, लाइफ में अच्छा करना है, बढ़िया करना है, यू वांट टू बिकम अ शेफ, फैंटास्टिक। हु एल्स? मैम, यू शेयर? या चश्मा जनरल पैन उसका, ये वाली, यू यू आपको शेफ बनना है, वेरी गुड। आपका नाम? ओके, हैव अ सीट। आप में से इंट्रोवर्ट कौन है? वेरी गुड। और कौन कौन है? हाँ, ये आधा पौना हाथ नहीं, पूरा करो। हाँ, इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, और दिखाओ मुझे सारे इंट्रोवर्ट दिखाओ। यहाँ पे सब एक्सट्रोवर्ट है, मतलब कोई टेंशन नहीं? मैडम, नो टेंशन? ये हाँ था या ना था? नो टेंशन? काय का टेंशन है? इंट्रोवर्ट तो थोड़े से शर्म आती है, या झिझकते हो बोलने में, या यू आर ओके, यू नो, यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन टॉक? मेरे सामने नहीं, जनरली इन लाइफ, यस और नो? मतलब विच साइड? इंट्रोवर्ट। तो हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? सब है यहाँ पे, आधे से ज़्यादा जनता इंट्रोवर्ट है, मेरे को इंक्लूड करते हुए। मैं बताऊंगा अभी कैसे। यहाँ पे कोई है इंट्रोवर्ट? सारे एक्सट्रोवर्ट बैठे। मैडम, आप भी एक्सट्रोवर्ट हो? हाँ जी, एम्बीवर्ट, वेरी गुड। ये बहुत आगे जाएगी, लड़की डिप्लोमेटिक है, ये प्रधानमंत्री बनेगी हमारी। और ओके, कौन कौन थे इंट्रोवर्ट? दोबारा से हाथ खड़ा करना। अच्छा, खड़े हो जो। हाँ, नाम बताओ। ओके, घोष साहब, व्हाई डिड यू जॉइन होटल मैनेजमेंट? यू वांट टू बिकम अ शेफ, फैंटास्टिक। ऑलराइट, who else who does not want to become a chef but has joined hotel management in order to get into hotels and restaurants or aviation and not become a chef? कौन है ऐसा? हाथ खड़ा करो, have a seat। हाँ जी, what's your name? वसीम। So वसीम जी, बताइए, मतलब which field do you want to go into? F&B services, very good। And what made you choose F&B services? Sorry? Lobby management। अरे नहीं, मतलब क्या सोच के आपने कहा कि F&B? You must have had a thought ना that why F&B या why kitchen, why front office? अच्छा, you had a little idea about F&B service and you want to go into that. Lovely. So have a seat, have a seat. Now there are a couple of things that I will try and explain to you. It's very important now that you're part of Hotel Management Institute, and that too with Guru Nanak Institute of Hotel Management. One of the things is that in order to move ahead, your institute or your faculty and the course and curriculum is very important, because आप पहली दफ़ा आप कोई सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो, सीख रहे हो from the scratch. So you may have an idea of how a hotel works, F&B है, front office है, kitchen है, you want to become a chef, you want to become a housekeeper, you want to become a general manager. But उन सब चीज़ों के अलावा जो आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हो वो कॉलेज में है, राइट, योर इंस्टीट्यूट। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क एट हैंड इज दैट you have to start it from the right place, right? And that's where you are. Guru Nanak Institute of Hotel Management is, ये जो पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस आप देख रहे हैं, it's very old, you know, so you have seasoned faculty, you have experienced staff, you have a course and a curriculum that has been set, and you have the infrastructure to hold it, you know, big classrooms, आपके labs हैं, practical labs हैं, आपके theory labs हैं, आपके industry visits हैं, आपके placements in terms of your vocational training, in between आपकी ना होटल में अभी ट्रेनिंग होगी, मालूम है ना,
इन बिटवीन अभी आई थिंक सेकेंड ईयर में होती है, सेकेंड ईयर यू हैव टू गो इन फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वेयर आई थिंक 6 months यू हैव टू बी वर्किंग इन अ होटल एंड वेयर यू काइंड ऑफ ट्रेन, यहाँ पर आपको खुद ही ट्रेन करना पड़ता है, कोई आपको ट्रेनिंग देता नहीं है, इतना कोई स्ट्रक्चर्ड है नहीं, बट इट्स फन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर स्टार्ट इज सॉलिड. स्टार्ट अच्छा होता है, सो यू जस्ट गेट दैट पुश, सही पुश मिल जाता है. देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि जो भी आप यहाँ पर सीखोगे यू हैव टू प्रैक्टिस इट. लाइक अभी तक स्कूल में क्या होता था, पढ़ो 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 पढ़ो, नंबर लाने नंबर लाने नंबर लाने, राइट, यही था. होटल मैनेजमेंट के अंदर ना नंबर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ. आपके अगर 12th में 90% आए थे या 95 या 90 से ऊपर आए, 95 या 99 जितने भी आए थे, तो आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलता है, राइट. उससे अगर 70 to 80 के बीच में आएंगे तो आपको फलाने कॉलेज में मिलेगा, उससे नीचे आएंगे तो इसमें, और एक सर्टेन ब्रैकेट आता है, इतने आएंगे तो आपको कोई एडमिशन मिलेगा ही नहीं. यस और नो, राइट. मेरा भी यही हाल था, मेरे भी कोई बहुत अच्छे नंबर तो आए नहीं थे, तो एडमिशन हर जगह तो मिलता नहीं. इट्स वेरी टफ. एंड आई वॉज अ टोटल इंट्रोवर्ट, तो मुझसे तो बोला ही नहीं जाता था. पब्लिक स्पीकिंग तो ज़ीरो, टेलीविजन तो मतलब कर लिया, पता नहीं कैसे कर लिया. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट हाउ होटल मैनेजमेंट एज अ कोर्स इज डिफरेंट. हाउ इट इज़ डिफरेंट इज दैट यू हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट यू हैव टू टेक थ्योरी में, प्रैक्टिकल में. आप 40 नंबर ले आओ 100 में से, या आप 99 ले आओ, इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन योर जॉब. Isn't it weird? Marks don't count here. लाने हैं, पास होना है, but they don't count. Did you know this or not? मालूम है? किसको नहीं मालूम था? कोई है? नहीं मालूम था ना? है कोई? हाँ. कि यहाँ पे मार्क्स की होड़ नहीं है कि आपको इतने नंबर लाने हैं. हैड दिस बीन एन इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर भी ना मार्क्स के लिए होड़ लगी रहती है कि भाई यू हैव टू हैव ग्रेड आना चाहिए. ऐसा नहीं कि जिनका कम आते उनका कुछ नहीं होता. आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज और एनकरेज एनीबडी इन एनी वे, बट आई एम ट्राइंग टू से दैट यहाँ पर मार्क्स की अहमियत नहीं है, विच डज नॉट मीन कि पढ़ें क्यों जब मार्क्स की अहमियत नहीं है. यहाँ पर अहमियत है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की, आपकी नॉलेज की, जो आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जाएगा. तो अगर 3 साल बाद जब आपको गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से आपकी डिग्री मिल जाएगी 3 साल बाद, ठीक है, और फिर आप जॉब के लिए जब कैंपस में बैठेंगे, होटल्स आएंगे, रेस्टोरेंट्स आएंगे, शायद मेरे किसी रेस्टोरेंट या मैं जिस होटल में काम कर रहा हूँ वहाँ पर आ रहे हैं और मैं ही आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो आपके 99 आए, 100 आए, या आप 33 पे लटक पटक के पास हो गए, विल मेक नो डिफरेंस. मेरे को क्या चाहिए आपसे, वो ये है कि आपकी नॉलेज जो 3 साल है आपने यहाँ पे ध्यान दिया या नहीं दिया. जो आपके करिकुलम में था उसके हिसाब से मैं अगर आपसे कुछ पूछूंगा, हाँ भाई आता है. सेकंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं, कि मैं अगर आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप क्या, मैंने पूछा एक्स और आप बता रहे वाई. देन कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट, किस क्लैरिटी से आप अपने विचार दूसरे को बता सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली इफ यूर इन किचन, आपका ट्रेड टेस्ट है तो स्किल कि क्या सीखा. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप बहुत ही अच्छी एक शानदार बना देंगे, लेकिन मुझे पता 3 साल आपने कॉलेज किया, इंडस्ट्री एक्सपोजर है, आज आपके पास यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आपके पास हर कोई बड़ा बड़ा शेफ़, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स आपको चीज़ें दिखा रहे हैं कैसे बनती है, कैसे होता है. तो आप वो किचन में मुझे एटलीस्ट एक प्रेजेंटेबल 3 कोर्स और 4 कोर्स मील देंगे. अगर आप सर्विस में हैं, अगर आप F&B में हैं, तो मैं आपसे इंडस्ट्री के अलग अलग क्वेश्चन पूछूंगा. व्हाट आर द टॉप रेस्टोरेंट्स दैट यू नो ऑफ, वेयर हैव यू डाइंड, और अगर आपने डाइन नहीं किया वो फलाना रेस्टोरेंट में मेन्यू क्या है, उनकी सिग्नेचर डिशेस क्या है, कोई सिग्नेचर कॉकटेल या मॉकटेल अगर आप बता सकते हैं, थिंग्स लाइक दीज. सो आपको अपना जो ये दिमाग है इसको और खोलना है. यू हैव टू ओपन इट अप. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहली चीज़, जितने भी जो यहाँ पर आए, चाहे आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सवर्ट हो, इट डज नॉट मैटर, कम्युनिकेशन हैज़ टू बी वेरी क्लियर. आपकी बोली, चाहे आप बांग्ला में बोलो, चाहे आप हिंदी में बोलो, चाहे आप इंग्लिश में बोलो, चाहे आप जर्मन में बोलो, क्लैरिटी
दो चीज़ों की, बोलने की और जो आप कहना चाह रहे हो, जो आपके दिमाग में दिल में है, उसको सही तरीके से कम्युनिकेट करना, बिना अटके, बिना सोचे या बिना ओवर सोचे या ओवर स्ट्रेस करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेट है। जब हम होटल मैनेजमेंट के बाद ज्वाइन करते हैं इंडस्ट्री, इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री आपने देखा आजकल, अब तो वीडियो आते हैं, लोग ज़रा से नाराज़ भड़क जाते हैं सर्विस वालों के, तो मतलब बुरा हाल कर देते हैं कि भाई तुम ही हो, तुमको ही हम, वो कहते हैं ना, बोल बोल के परेशान कर देंगे। सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कामनेस, कूलनेस दैट यू नीड टू कैरी एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। कितने लोगों को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है कि उनको समझ आ गई है बट बोलने में हिचकिचाते हैं, स्टेज फ्राइट है, या बड़े क्राउड के आगे नहीं बोल सकते। आप हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे ये तो सारे एक्सट्रोवर्ट वाले हैं, एम्बीवर्ट वाले भी हैं, वेरी गुड। अब टाइम आ गया कि यू नो, यू आर अडल्ट्स नाउ, लाइफ गेट्स वेरी सीरियस इन कॉलेज। हालांकि इज द मोस्ट फन पार्ट, यू शुड ऑल एंजॉय। ये 3 साल 4 साल आपके कभी वापस नहीं आएंगे। यू शुड हैव अ लॉट ऑफ फन, मेक गुड फ्रेंड्स, enjoy your life, don't stress, but work hard. Work hard में मतलब study hard, because after this you are considered an adult, you will be looking for a job and you will start earning for yourself and your family, right? Move for yourself. So it becomes really serious, and in order to cross that, you will have to work on yourself, you will have to work on your friends. अब आपके भी कई ऐसे दोस्त होंगे जो अभी भी एडमिशन सीख कर रहे हैं कि क्या करें, हैं किसके? Suggest them hotel management. Have you suggested them? कि भाई I'm doing this, I've enrolled. If you're still confused, why don't you come with me to a seminar, attend and figure it out for yourself. आप push नहीं कर सकते, so pressurize नहीं कर सकते, but आप suggest कर सकते हो, right? So maybe आज जाकर call them up after your session if you feel happy to come and meet the faculty at Guru Nanak Institute of Hotel Management. Get them, right? So on a separate note, so what I'm trying to say is that communication is the key. Being an introvert or an extrovert has no bearing. It doesn't matter. मैं ये नहीं कह रहा introvert वाले extrovert हो जाओ, extrovert वाले introvert हो जाओ। वो लड़की ने बिल्कुल सही कहा, ambivert। जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको ढालना चाहिए। आप अपने आप को 360 नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप 60 भी चेंज कर दोगे बहुत है। I'll tell you, I'll give you an example. I was somebody who couldn't talk in front of crowds. मतलब मेरे पूरा स्कूल में, मेरे को स्कूल से जब पास आउट होते हैं ना, यू गेट दोस टाइटल्स ना, सबको टाइटल मिलता है ना, फेयरवेल पे मिलता है या नहीं मिलता? क्या मिला था तेरे को टाइटल? हाँ, क्या था? अरे बेटा सर्टिफिकेट नहीं, जो यू अंडरस्टूड? नहीं, जब मस्ती करते हैं ना सारे, जैसे यू नो हर एक बच्चे का। अच्छा, नहीं मिलता? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में हर स्कूल में ये मिलता है। जैसे ही आप जिस दिन पास आउट होते हो ना, तो इधर मिलता है, तो क्या बोलते हैं इधर? सॉरी, तेरे को मिला था मिस्चीवियस पावर हाउस, नाम मिलता है ना सबको। फन में दोस्त एक दूसरे को नाम देते हैं। क्या था तेरा? चल ना बोलो, गाली तो नहीं है ना? बस फिर गाली है, आप फिर गाली नहीं दे सकते उसको। ऐसे बोलते टी और फिर आगे का बोल दो। हाँ, डॉट में, चलो इसका डॉट मिला। मेरे को मिला था मिस्टर शाय गाय। सबकी ना पर्सनालिटी के हिसाब से उनको दे देते, जैसे इसको मिस्चीवियस बोला था तो मेरे को मिला था मिस्टर शाय गाय, और मेरे को बोला था जिसकी मुंह में ज़बान नहीं है। तो जब मैं कॉलेज में पास आउट करा यही था, लास्ट डे पे मिस्टर शाय गाय। मैंने बोला ये 12th में भी वही मिला, कॉलेज में भी वही बोला। मैं इतना तो शायद नहीं था, बट था। यू अंडरस्टैंड? बट I got admission in hotel management college, and वहाँ पर I realized that if I don't speak up at the right time, I can't be extrovert all the time, because वो मेरे अंदर का वो डिज़ाइन बन चुका है, सेट हो चुका है। But if I don't step up to the situation when it is required, then I'm not fit for that job. And it is very important when you're facing the customer that you need to step up, take command, take charge, do what is required. You can be introvert or whatever in your life, you have to be confident, understand the situation and handle the situation whenever you are required to do. And that is what you will learn at GNHM, right? That is part and parcel of your course to bring you out of your shell. But वो ना, आप कहते हैं ना, you can only take the horse to the pond, you cannot make it
व्हाट? घोड़े स्विम नहीं करते, काऊ काऊ भी, अरे काऊ घोड़ा, कहावत है कि आप घोड़े को तालाब तक लेके जा सकते हो, लेकिन आप उसे बेटा घोड़े को क्यों तैराओगे? घोड़े को भगाओगे? घोड़े को कौन तैराता है? अगर मैं बोलता मगरमच्छ तो ठीक है यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। पानी नहीं पिला सकते, सही बोले लड़की। कहाँ से हो आप? कोलकाता से हो? इतनी पॉपुलर नहीं है लगता है ऐसे ही। वो कहते हैं कि आप अगर घोड़े को तालाब तक लेके जा सकते हो, लेकिन वो पानी तभी पिएगा जब उसे प्यास लगी है। यू कांट फोर्स हिम टू ड्रिंक वाटर। तो ये कहावत है कि भाई इस कॉलेज के अंदर GNHM में आपको सारे टूल्स देंगे, ट्रेनिंग देंगे टू बी मोर कॉन्फिडेंट, आउटस्पोकन, टेक चार्ज, थ्योरी, प्रैक्टिकल, वो सब आपके पास होगा। लेकिन अगर आपको प्यास नहीं लगी तो आप पानी नहीं पियोगे। अब समझ आ गई? You can take a horse to the pond, but you can't force it to drink. ठीक है जी? Am I talking alien? Clearly. नहीं, yes sir? No sir? नहीं sir? ठीक है जी? पीछे वाले हाँ ना तो बोल दो यार। अच्छा, 4 ने हाँ बोल दी, ठीक है। Right, so it's important part and parcel of this, over and above your subjects, and always help your friends out. कोई अगर थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है आपको किसी सब्जेक्ट में या किसी तरीके में, मजाक मत बनाओ उससे, मजाक मत बनाओ, बिकॉज वो उसकी लाइफ बन जाएगी पूरे टाइम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तू छेड़ती है ना सबको पीछे वाली, यू आर स्मोकिंग, छेड़ती है अपने दोस्तों, या यू स्ट्राइप शर्ट, तू क्यों उसको डिफेंड कर रहा है? तू इधर हो ना। नहीं, लड़की बोला है, तेरी तो मूछें भी हैं घनी घनी, तू कैसे लड़की हो सकता है? क्या नाम है आपका? पीछे आप हंसे थे जब मैंने बोला था कि अपने फ्रेंड्स को खींचना नहीं चाहिए। आप खिंचाई करते हो दोस्तों की? क्या नाम है आपका? सुखप्रीत कौर। अच्छा, आपकी खिंचाई होती है? नहीं, कोई नहीं करता? अच्छा, वेरी गुड। ओके, सो आई कैन कीप गोइंग ऑन। आई वुड वांट यू टू आस्क मी क्वेश्चंस। पूछिए, कुछ सवाल है तो पूछो, एनीथिंग। How to crack the interview? Okay, that's a fair question. How to crack the interview? हालांकि आपके लिए 3 साल आगे की है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अभी से आपको स्टार्ट करनी है। उन्होंने पूछा how to crack an interview. There is no set pattern to crack an interview. You don't know what the other person who has come is looking for. Everybody is different. They all have a different way of looking at things. But one thing is for sure that everybody knows that you know only very limited. 3 साल में जो आप पढ़ सकते हो वो आपने स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ा है उतना आपको आता है। You don't know the world. अभी वर्ल्ड आपके लिए ओपन होगा। But what they're looking at is good personality. One part of personality is dressing right. Your haircut, especially boys, haircut, even girls, how do you tie your hair, what you are wearing, and how you carry yourself, how you talk, communication सबसे important है। आप लोगों का दिल जीत सकते हैं just by your words. Words में बड़ी power होती है। Your words are more powerful than anything in the world. You agree or not? अच्छा, why do you agree? Who will tell me? Who is the next introvert? Madam, आप? Who will tell me why words are more powerful than anything else? बताइए, खड़े हो जाइए। Stand up, yeah, you. Yeah, yes, you. हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप। Okay, give me an example of how words are powerful. Hold on. हाँ, normal. How? I'm not talking about interview. Generally in life, do you think words are powerful? Any? Out of your life, कोई example? Okay. मम्मा के ज़्यादा क्लोज है पापा के?
मम्मी, मम्मी ने कभी बोला बेटा आई लव यू? बहुत प्यारी बच्ची है, अच्छा लगता है ना, पावर है ना उनके वर्ड्स में। पापा ने कभी डांट लगाई है? पावर है ना उसमें वर्ड में, ये क्या किया है, तो ऐसे ये क्या किया है भाई, कर दिया, हो गया, पावरफुल है ना। बैठो और बताता हूँ। हाँ जी, आप बताओ। हमारे वर्ड्स जो है दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। हाँ, दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं, दोस्त को दुश्मन, एब्सोल्युटली। आपका नाम क्या है? अजमल खान। अजमल खान। आपका नाम अजमल है, राइट? अजमल क्या है? बैठ जाओ, वर्ड है। कुणाल इज अ वर्ड। द मोमेंट आई ओन इट, it's my name, it's the most important word which I will use from my birth till the time I'm gone. Kunal, whether good or bad, power. How does शादी होती है, वो क्या कहते हैं? फलाना X एंड फलानी Y, you are now married. क्या बोला उसने? सिर्फ मैरिड बोला, होगी मैरिज। चाहे आप सेरेमनी करो, ये करो, वो करो, उससे नहीं होता, बोलने से होता है। आप चाहे चर्च में जाओ, चाहे आप कोर्ट में जाओ, चाहे आप हिंदू मैरिज करो, चाहे आप क्रिश्चियन स्टाइल मैरिज करो, चाहे आप निकाह करो, कैसे होता है? बोलने से। सो ये वर्ड्स आर पावरफुल। अगर कोई आपको गाली दे देता है, वो भी तो एक वर्ड है, चुपता है, पावर है उसमें, पावर टू स्पॉइल योर मूड, पावर टू मेक यू एंग्री। अब वही कोई बोल देता है, अरे यार आप तो बहुत ही अच्छे हैं, वो क्या है? वर्ड है। वो आप अच्छे हो ना हो, आप जब सुनते अपनी अच्छाई, अच्छा लगता है, वो क्या है? वर्ड्स हैं। आप कोई किताब पढ़ते हो या कोई आर्टिकल पढ़ते हो और उससे आप बेहद इन्फ्लुएंस हो जाते हो, वो क्या है? वर्ड। यू रेड समथिंग। अगर आप शाहरुख खान मूवी देखते हो, यू लव हिम, आई लव हिम, वो जिस तरीके से जो बोलते हैं उसमें पावर है, वो जो करते हैं उसमें पावर है। हिज वर्ड्स बिकम हिज एक्शंस एंड दैट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग। सो यू चूज योर वर्ड्स। मैं ज्ञान बांट रहा हूं यहां पे, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आप क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, डिफाइंस योर पावर। यू हैव द गिफ्ट ऑफ वर्ड्स। Where do you use it? चेक इन हुआ, गेस्ट, उसका कमरा खराब था, उसने खाना खाया, ऑर्डर किया, बहुत ही बेकार था, उस पूरे बड़े गंदे मूड में है। नाउ इट इज़ योर वर्ड्स एंड योर एक्शन दैट कैन हैव पावर ओवर दैट गेस्ट टू काम हिम डाउन। और इफ इट्स द इंटरव्यू इन दिस केस, योर वर्ड्स हैव द पावर टू कन्विंस हिम दैट आपसे तो अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता एम्प्लॉय। I'm not talking about overconfidence, I'm talking about वर्ड्स ही तो हैं। उन्होंने आपसे कुछ पूछा, अब आप मुंह से वर्ड्स ही तो निकालोगे, सेंटेंस ही तो बनाओगे। अब उस वक्त आप डर के सेंटेंस बनाते हो, घबरा के बनाते हो, खुचल कूद के बनाते हो, कॉन्फिडेंस में बनाते हो, कैसे अपने वर्ड्स और अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप डिस्प्ले करते हो, दैट सील्स द डील। अगले को उसी से आपको कन्विंस करना है, चाहे वो इंटरव्यू है, चाहे इन लाइफ है, कोई फ्रेंड है, कोई पार्टनर है, या कोई भी चीज़ है। अंडरस्टैंड, हल्के में मतलब वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई किसी की कोट पढ़ते हैं, सुबह सुबह इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आता है, मेरी मम्मी मुझे भेजती है गुड मॉर्निंग वाले, कभी चिड़िया, तोते, पहाड़, नदियाँ बनी है, उसमें कोई कोट लिखा होता है, राइट? कभी कभी कोई कोट इट हिट्स यू हेयर, इट गिव्स यू दैट वाओ, क्या लिखा है, एंड यू फॉरवर्ड इट टू पीपल, राइट? That is a powerful word, that's a powerful sentence. So in order to, coming back to a question, you becoming, how to crack interviews, there is no set this thing. You can work on yourself and hope for the best, deliver your best. जो जहाँ आपका टैलेंट दिखेगा, आप वहाँ पर फिट हो जाओगे, right? What else? What is KMT, like management training? I heard about it, but I am not clear about it. Management training? I heard that I need to crack that. Like there is no like subject, but there is something like you need to crack that, and you can make a better opportunity.
Absolutely, yes, understood. Very good question. So she's question नहीं सुनाया होगा ना आपने. So she's like कि जब आपके कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आपको सिलेक्शन के लिए आते हैं तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है एक, और एक होता है ऑपरेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इज द अदर वन. अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एन ऑपरेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, बेसिकली जो होटल आपको हायर करता है, रेस्टोरेंट हायर करता है, उनके पास 2 प्रोग्राम्स होते हैं यूजुअली. कि जैसे आपने कहा जी मुझे किचन में जाना है, मैं बोलूँगा आई एम हेयर टू सिलेक्ट पीपल और कैंडिडेट्स फॉर ऑपरेशनल ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग. मैनेजमेंट ट्रेनिंग में फास्ट ट्रैक होता है आपका राइज. सो लेट्स से 2 साल का मैनेजमेंट ट्रेनिंग एज अ ट्रेनी आप ज्वाइन करते हो. आपके 2 साल की ट्रेनिंग के बाद इन दैट होटल और रेस्टोरेंट यू आर कन्फर्म्ड एट अ असिस्टेंट मैनेजर और अ सीनियर कैप्टन इन सर्विस. और किचन में तो DCDP और CDP और कुड बी ए जूनियर सू शेफ ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है. वहीं पर आप ऑपरेशनल ट्रेनिंग जब ज्वाइन करते हो, यू स्टार्ट फ्रॉम बेस, वेर इन यू आर टेकन एज अ वेटर और एज अ एज अ असिस्टेंट और अ किचन असिस्टेंट और अ कॉमी और वट एवर फैंसी लैंग्वेज यू वांट टू पुट, बट वो हायरार्की में नीचे होता है. देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट जब आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई अच्छे होटल के घुसते हो, यू फास्ट ट्रैक योर करियर ग्रोथ. जो नीचे से भी स्टार्ट करता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग. उसको 1-2 साल 3 साल आपसे और ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन वो आपके पास आ जाएगा 2-3 साल में, यू विल मैच. एंड दोनों का फ़ायदे नुकसान है. लाइक व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड थ्रू ताज मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर किचन्स. सो मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था बहुत रिगरस था और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था अलग अलग जगहों में, तो मेरा करियर ग्रोथ फास्ट हुआ. वहीं मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बॉटम से स्टार्ट किया. आज की डेट में हम दोनों बराबर के हैं, कोई फ़र्क नहीं है. बट इट्स जस्ट दैट्स व्हाट गिव्स यू दैट पुश. फॉर दैट जो भी मैंने इतनी कहानी आपको बताई है अबाउट पर्सनालिटी, लर्निंग, कम्युनिकेशन, पर्सनल ग्रूमिंग, स्किल्स, ऑल ऑफ दैट यू लर्न, वो प्ले में आते हैं. व्हेन यू play that ace game and you say the right words and do the right actions, that's when your likelihood है कि आप as a management trainee you are taken. and वो management trainee कम seats होती हैं. so you have to compete, you have to bring out your A game. और नहीं भी होता कोई टेंशन नहीं, it's fine. मेहनत करोगे it'll always sooner or later, because कई ऐसे देखे मैंने who join management training program but cannot handle that pressure. Because everything is crunched in 2 years, जो आपके साथ वाला is learning in 4 years. So, you understand, it's not about getting through, it's also about making through. Because then that is very rigorous also. Because they expect, they believe when you talk to them in an interview, she can handle it, he can handle the management training course. Because it's very rigorous, it's very fast, you have to learn, absorb and deliver. So, सबके pros and cons हैं, like I said. What else? Suggestions for internship, suggestions as in what? What kind of suggestions? कि मतलब कहाँ पे करनी चाहिए? नहीं, suggestions for internship as in for what? मतलब कहाँ से करनी चाहिए? For chef, internship. हाँ, देखो होता क्या है कि जब आप सेकेंड ईयर में आओगे ना, आप इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यूज होते हैं. यू सिट इन देम, यू क्लियर देम. यूजुअली दे आर वेरी सिंपल, दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अगेन, ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट थ्रू इन इंटर्नशिप. योर बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू टॉक. वंस इंटर्नशिप वो हो जाती है, उनका एक सेट प्रोग्राम होता है, हर एक होटल का अलग होता है. एंड देन यू जस्ट प्ले एज पर व्हाट द होटल हैज़ डिजाइन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर यू. उसमें आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी. हालांकि टेंशन इतनी बात की लेने कि आपको फर्स्ट टाइम पता चलेगा कि नौकरी क्या होती है, व्हाट इट टेक्स टू डू योर जॉब डिलीजेंटली. 10 घंटे 11-12 घंटे स्टैंडिंग ऑन योर फीट, वर्किंग, डिलीवरिंग, हाई प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस मैच करना, और इतने सारे लोगों के बीच में, क्योंकि होटल के अंदर 300-400-500 लोग तो काम कर रहे हो, तो इतने हलचल में काम करना, वो आपको धीरे धीरे योर बॉडी अब्जॉर्ब्स एंड अंडरस्टैंड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ इज योर इंटर्नशिप.
टेक इट वेरी सीरियसली बिकॉज दैट विल डिफाइन लाइक मेरी इंटर्नशिप में मेरे को ये हो गया था, मेरे को फ्रंट ऑफिस ज्वाइन करना था जब मैं आया था फ्रंट ऑफिस करने। मेरी इंटर्नशिप में मुझे इतना पक्का हो कि मुझे किचन करनी है, क्योंकि मुझे बाकी सब से इतना लगाव नहीं हो जितना किचन से लगाव हो गया। सो दैट मेक्स और ब्रेक्स योर करियर। मैंने से मेक्स और ब्रेक्स योर करियर बिकॉज आपका डायरेक्शन, आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिल जाती है। कई लोगों को उस वक्त मिलती है, कई लोगों को बाद में मिलती है, बट सबको क्लैरिटी मिल जाती है। इंटर्नशिप में आपको वो हिंदी पंजाबी में कहा होता है आटे चावल का भाव पता चलता है, मतलब आपको पता चलता है रियलिटी क्या है। इट रियलिटी स्ट्राइक्स यू एंड दैट्स व्हाई प्लेसमेंट in the right hotel for internship is very important, and thankfully you are in a good college जहाँ पर 100% internship placement है, international भी है, domestic भी है। Am I right? Yes. सबको मिलती है, वो हो जाएगा। The college is good at getting you placed for internship and getting the best hotels to come and interview you when you reach that stage। अभी तो तीसरा साल है, आप तो मतलब jumping, everybody is jumping 2-3 साल आगे। अभी का बताओ। और सवाल तू ही पूछ ले, बाकी कोई पूछ नहीं रहा। हाँ जी पूछो। तो आप तो मेरे आइडियल में सर, मैं आप जैसा कैसे बनूं एज ए सक्सेसफुल शेफ एंड एज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन? अच्छा देखिए, मेरे जैसा बनने की कोशिश मत करिए सबसे पहले तो ये, क्योंकि किसी जैसा बनने के लिए उसके जैसा होना पड़ता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेहनत करोगे मेरे, मैं कह रहा हूँ आप मेरे जैसे नहीं, मुझसे बेहतर बनिए, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट यू ऑन। आप अगर मुझसे इंस्पायर होते हैं, थैंक यू सो मच, माई गॉड इज़ बीन काइंड इफ़ यू फील दैट। यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय पीपल बट यू हैव योर ओन सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़। शायद आपकी कैपेबिलिटी मुझसे आगे निकलने की है, सो गेट इंस्पायर्ड, इट्स अ गुड थिंग। हैव सर्टेन मेंटोर्स एंड बेंचमार्क्स इन योर लाइफ and go and run with what you see and get what you get inspired by, that's brilliant, but always understand your strength and weaknesses। आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, वीकनेस पे आपको काम करना है, स्ट्रेंथ को आपने फुल यूज करना है। जस्ट डू दैट एंड गो विद इट, प्ले विद इट। हार्ड वर्क कभी भी अननोटिस्ड नहीं जाता, बट हाउसएवर आज की दुनिया में हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क ये नहीं कि मुझे दिखाना है, स्मार्ट वर्क इज प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके अपनी मेहनत को एक डायरेक्शन देनी है, एंड इट हैज टू बी सीन बाय मोस्ट पीपल, एंड सूनर और लेटर everybody gets onto a platform where they're happy and comfortable, unless you are in a job where you don't want to be and you are doing it just because you have to do it. That's a different story. जैसे कि सर आप संजीव कपूर जी हैं, रणवीर ब्रांड हैं, उस लेवल पे जाना, ऐसे पहचान बनाना, ऐसा मैं कुछ चाहता हूँ। कैसे? Simple. Do something different. Do things which nobody else has done, जो हम तीनों ने भी ना करो। That requires lot of hard work, lot of। देखो एक होता है कॉलेज का आपका करिकुलम, हम यूजुअली क्या करते हैं, मैंने भी यही किया कि भाई कॉलेज होता है मस्ती वाला, या स्कूल होता है मस्ती वाला, कि कॉलेज खत्म करे, उसकी पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लिया, खत्म, और अब इंजॉय करो। दूसरी तरफ उसका पहलू ये है कि इंजॉय तो करो डेफिनेटली, बट ओवर एंड अबव आफ्टर कॉलेज what extra am I doing? Today you have the access to knowledge on internet for everything. If you can take out some time and start studying there, listening to people, looking at what they are doing, what is the latest technology, what is the latest food habits, and start learning about it. That's where you become faster, sharper. You build yourself in a way that people recognize you for what you do, what you've become, or what you're offering, or what you get on the table. तो ये बहुत important है। हाँ जी। Sorry, थोड़ा ऊंचा बोलना प्लीज। आप इनोवेशन जो करते हैं डिशेस का, डिफरेंट डिशेस क्रिएट कैसे? ओके, अंडरस्टूड। सो बेसिकली आपका क्वेश्चन बैठ जाइए, आपका क्वेश्चन है कि हाउ डज वन इनोवेट, हाउ डज वन हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स दैट वन डज एंड ब्रिंग्स इट आउट। वेरी सिंपल, you have to be open to everything, watch everything, learn everything, see everything, and absorb everything. One of the important things in order to innovate is
travel, experience, absorb. This chronology. I realized मैं भी ना सोचता था कि यार ये जब मैं स्टार्ट किया था कि हमने कॉलेज में सिखाया कि भाई जैसे बेक्ड वेजिटेबल बनानी है ऐसे 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 बनाई. देन आई टू सी अदर शेफ्स, यार ये तो इसका अलग ही स्टाइल है बनाने का, इसने तो कुछ ये किया ये किया ये किया कैसे कैसे ये कैसे 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 किया. आई रियलाइज आई स्टार्टेड कॉपिंग देम, भाई ये ऐसे करना है ऐसे करना है. फिर मेरी नॉलेज वहीं तक थी अनलेस मैं आई सी समबडी एल्स डू समथिंग डिफरेंट. देन आई रियलाइज दैट व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, मुझे ना शुरू से ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था. एंड आई वुड ट्रैवल विद जो भी छोटा पैसा होता था, थोड़ा बहुत होता था बचा के, आई वुड ट्रैवल, स्टे इन द चीपेस्ट होटल, ईट एट द वॉट एवर आई कुड अफोर्ड, एंड जगह 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 खाना स्टार्ट किया. वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि यार इफ़ आई गो टू बंगाल, यार यहाँ पे तो शोरशे इज़ प्राइम, एवरीबडी यूजेस शोरशे, पोस्तो है तो पोस्तो इस्तेमाल करते हैं, वेरी नाइस. आई गो टू डाउन साउथ, अरे यहाँ तो कोकोनट का और चिली का, टैमरिंड का बड़ा इस्तेमाल है, वेरी नाइस. यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, अरे यहाँ तो यार अखूनी है इस्तेमाल होती है, या फिर वाइल्ड एप्पल्स इस्तेमाल होते हैं, या स्मोक्ड पोक इस्तेमाल होता है, बड़ा हटकर है. राजस्थान जाओ तो बिल्कुल ही खाना चेंज हो गया है, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. आप जैनी फूड खाओ तो उसके अंदर नो अनियन नो गार्लिक, इतना बढ़िया, फिर भी स्वाद निकल रहा है, कमाल है. कश्मीर जाओ तो बिल्कुल डिफरेंट, दिल्ली आओ तो टोटल डिफरेंट. Now when you visit these places, when you eat the food of your different communities and region, consciously research, consciously pen down what you have eaten, और वो आपके subconscious memory में होता है. तो the next time I sat down and said I want to innovate a dish, तो मेरे को ज़्यादा effort नहीं डालना पड़ा था. क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरा जो पैलेट था वो बढ़ गया है. अब मुझे पता चल गया कि अच्छा यार फलाना पेपर जो मैंने देखा था नॉर्थ ईस्ट में, त्रिफल, वो पेपर अगर मैं वो साउथ इंडियन करी के अंदर, जिसके अंदर मैंने छौंक लगाया राजस्थानी चिल्ली का, और मैंने उसे नो अनियन नो गार्लिक बनाया और उसको मैंने सर्व किया बंगाली शोरशे के साथ, वो चारों पांचों फ्लेवर्स को मैं मिलाकर मैं कुछ बना रहा हूँ, ओ वाओ, इट इज़ समथिंग डिफरेंट. Sometimes it's a bad dish, sometimes it's a fantastic dish, but that's your baseline. जब आपकी innovation start होती है, you could be inspired by a building, you could be inspired by a culture, you could be inspired by a painting, you could be inspired by anything. Inspiration कहीं से भी आ सकती है. You can pile up a food, sandwich. अब सैंडविच तो सैंडविच है, अब खीरे टमाटर का सैंडविच बना दो, बट यू पाइल इट अप लाइक अ कुतुब मीनार, इट लुक्स लाइक अ कुतुब मीनार, ऑल ऑफ अ सडन इट्स लाइक वाओ, लुक एट दिस. अब आपने उसमें उसका फॉर्म चेंज किया है. अब उस सैंडविच के अंदर आप अपनी फेवरेट डिश डाल दो. कौन सी फेवरेट डिश है आपकी? कोई फेवरेट डिश है? चिकन डिश नहीं होती, फिश पातुरी आपकी. इंटरेस्टिंगली अभी मैंने साउथ अफ्रीकन हमारे क्रिकेट प्लेयर से, साउथ अफ्रीका की एक बहुत ही गज़ब की सॉस है, नाम सुना होगा आपने, कोई बता सकते हैं? बड़ी फेमस है, पी से शुरू होती है. पेस्तो इज इटालियन. नो, पेस्तो का मतलब क्या होता है? पेस्तो वर्ड का मतलब क्या होता है? पेस्ट. गुड. पेरी पेरी सुना है? तो उनके यहाँ पे बनती है पेरी पेरी सॉस. तो वो फ्रेश पेरी पेरी सॉस बना के फिश के अंदर उसको मैरिनेट करके उसको पत्ते में डाल के स्टीम करी, पातुरी की तरह बनाई, विद अ लिटिल बिट ऑफ बंगाली मस्टर्ड इटसेल्फ. फैंटास्टिक एक केम आउट. वो साउथ अफ्रीकन तो खा खा के उनको मज़ा आ गया. नाउ कहाँ से आया मेरे थॉट? बिकॉज मेरे को पातुरी पसंद है. मैंने पातुरी बथेरी बार खाई है, चाहे वो स्टीम्ड हो, चाहे वो उसको हमने सेक के खाई हो पत्ते में डाल के. मैंने क्या किया, मैंने उनका पेरी पेरी लिया, अपना शोरशे लिया, मिक्स करा, और जो क्या मज़ेदार फिश बनी. Now it's a very basic innovation. इसके अंदर I didn't have to move mountains to come to that. But that's where you get it. If I wouldn't have, look, I'm a Punjabi from Delhi. If you ask my friends and family who haven't visited ever Kolkata, they don't even know what is paturi. The other day I was on a call with a friend of mine, and she's like, it looks like you're in your kitchen. मैं हाँ, I'm making बैंगन भाजा. She's like, what? भाजा? मतलब भाजा नहीं, भाजा. What? क्या अजीब सा नाम है, क्या होता है? मतलब तूने बैंगन भाजा नहीं खाया? कह रही नहीं.
मतलब अच्छा, मतलब मेरे को तो पसंद है तो बैंगन था, मैंने चलो आई जस्ट फेल्ट लाइक ईटिंग समथिंग, तो बैंगन भाजा बना लिया. इट्स टेस्टी, इट्स सिंपल. सो डू यू अंडरस्टैंड, फॉर दैट पर्सन, इफ शी डजंट अंडरस्टैंड भाजा, you give her bangan, let's say she is Punjabi, she'll always say bangan ka bharta and never bhaja and never anything else. So you have to open up your mind. So long back I did bangan bhaja ke sath innovation because I like bangan and I like the bangan bhaja, which is a simple preparation. I paired it with meri mausi banati hai tomato chutney and a garlic yogurt and green apple, and that's always been one of my signature dishes, which is inspired from Bengal and my mausi ki recipe, which as a kid I used to eat वो टमाटर की चटनी. सो आपके लिए ना जितने रेफरेंस पॉइंट्स होंगे, इट विल बी इजियर फॉर यू टू इनोवेट. दिस इज वन वे ऑफ इनोवेटिंग. यू कैन गो बजर्क ऑन इनोवेशन का तो मतलब इट्स लाइक कोई मापदंड नहीं है ना, देयर इज नो पैरामीटर. आप कहीं से भी कुछ ही चीज से भी इंस्पायर हो सकते हो. व्हाट एल्स? हाँ जी, एनी मोर? अच्छा, आप में से गाना कौन गाता है? हु इज अ गुड सिंगर? वेरी गुड. और तू भी गाती है ना डांस? नहीं? फिर क्या करती है? खाना बनाती है. ये बहुत आगे जाएगी लड़की. एनीबडी एल्स हु सिंग्स? डांस. वेरी गुड. हु एल्स कैन डू एनी परफॉर्मिंग आर्ट? हाँ, सॉरी, ड्रमर है. वेरी गुड यार. कौन गाना गाएगा आज? सिंगर का है हमारा? गाना गाएगा बंगाली में या हिंदी इंग्लिश? कौन सा? बंगाली. आजा, बंगाली हिंदी में थोड़ा सा गाना गा. आजा. सजेशन फॉर हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या है? मतलब कौन मैनेज है? कस्टमर मैनेज करने के लिए. ओके, अभी बताएंगे. आओ पहले गाना गाओ. एवरीबडी. इंट्रोवर्टेड, थोड़ा थोड़ा इंट्रोवर्टेड, तभी तुमने हाथ खड़ा किया. हिंदी में कोई सा भी, बांग्ला में गाए. हेलो हेलो. सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब. सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब. वो छलक जाता है जो बेमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है. प्यार ही माना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, बेगाना होता है, बेगाना होता है. वेरी गुड है. क्या नाम है तेरा? अंतर्दत्ता. वेरी नाइस. बड़ी प्यारी आवाज है यार. कीप दैट ऑन. वेरी गुड, वेरी गुड. बिग चीयर्स फॉर अंतर्दत्ता प्लीज यार. अच्छा, अब ये गाना क्यों गवाया? क्योंकि हमें गाना सुनना था. है? फिर तो चला सकते थे ना. लुक, हम सब के अंदर ना बियॉन्ड योर वर्क देयर हैज टू बी नहीं, मतलब देयर शुड बी some passion of yours, whatever it is. Keep it alive. It is very important to take out time for your other passions apart from your studies, apart from your work, because ये जो power है आपकी hobbies की,
इसको लाइटली कभी मत लेना. दे वेरी वेरी पावरफुल, दे वेरी पावरफुल. दिस विल कनेक्ट यू टू मोर पीपल देन यू कैन इमेजिन. अगर आपकी कोई सॉफ्ट पावर आपकी है कि भाई आप अच्छा लिखते हैं, या आप ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, या आप मिमिक्री करते हैं, या आप कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स करते हैं, उनको अलाइव रखना बड़ा ज़रूरी है. राइट. सो अब जैसे अंतरदत्ता ने यहाँ गाना गाया, आपको हमेशा याद रहेगा अंतरदत्ता ने वहाँ गाना गाया था. अब नेक्स्ट कोई कॉन्सर्ट होगा, अरे गाना तो अंतरदत्ता ही गाएगा. राइट. यही होने वाला है. ठीक है, तेरे साथ यही होने वाला है. अच्छी आवाज़ भी है, बहुत बड़ी प्यारी आवाज़ है इसकी. और ये चीज़ इसको क्या देगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एप्रिसिएशन, कॉन्फिडेंस. जहाँ किसी चीज़ में ये लैक कर रहा होगा, ये पर्टिकुलर चीज़ उसको वहाँ कंप्लीट कर देगी. एंड यू नेवर नो कि जो आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठे, या लाइफ में आपका जो बॉस है, आपके जूनियर्स है, आपके साथ वाले हैं, कहाँ पर आपकी किस कॉमन पॉइंट पे मैचिंग हो जाए एंड आपकी बात बन जाए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. योर हॉबीज अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू क्लोजली नर्चर, गार्ड इट. उसको मरने मत देना कि टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. निकालना पड़ता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये शायद बात अभी आपको नहीं समझ आएगी, बाद में समझ आएगी कि भाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है. ये आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करती है. ये पर्सनालिटी का एक पहलू है जो छुपा रहता है, जो आपके करीब होता है, वो किसी को नहीं पता, अब सबको पता चल जाता है, तो यू आर नोन फॉर दैट. इससे पहले किसको पता था अच्छा गाना गाता है? ज़ीरो. अब किसको पता है? सबको पता है, और गा भी देता है. जिस चीज़ में आप अच्छे होते हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है. हाँ या ना? अगर मैं आपसे आपके बारे में पूछूं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फट बोल दोगे? बोल दोगे? अब टेल मी अबाउट समबडी एल्स, मे बी नॉट. राइट. सो इस बात का जूस क्या निकला है? जिस बात को आपको अच्छे से पता है, जिसका आपने रियाज किया है, जिसका आपने प्रैक्टिस करी है डे इन डे आउट, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. तो गोइंग बैक टू योर आंसर क्वेश्चन कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में किस तरीके से आगे बढ़ें, क्या करें, यू हैव योर आंसर. जिस सेक्टर में आप हैं उस सेक्टर के A to Z अगर आपको मालूम है, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा. हम अंडर कॉन्फिडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम कब फील करते हैं? जब उस सब्जेक्ट के बारे में हमें पता ही नहीं. अगर मैं आपको पूछूं भाई रॉकेट कैसे बनता है, बट इसमें आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे. क्यों? रॉकेट कैसे बनता है, ठीक है यार, मेरे को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, जो पूछा उसको भी नहीं पता. लेकिन अगर रॉकेट कैसे बनता है पे आपकी लाइफ टिकी हुई है, थिंग्स चेंज. सिमिलरली भाई अगर आपका इंटरव्यू वाला आके पूछता है कि मुझे 10 बेसिक सॉसेज और उनके डेरिवेटिव्स बताओ एग्जाम्पल के तौर पे, और वो आपको नहीं आता, forget confidence, forget everything else, there is no point. So you need to know your trade very well and be confident. कई लोगों को पता होता है लेकिन जवाब नहीं दे पाते क्योंकि घबरा जाते हैं. होता है, किसके साथ होता है? तो इस घबराहट का इलाज का क्या है? ये जो अभी इसने करा, अपने किसी स्किल को एनहांस करो, वो वहाँ पर कॉन्फिडेंस बनेगा. फॉर यू piece of advice, कभी अंडर कॉन्फिडेंट फील करे, just think and then go get into that conversation and that interview. It'll help you a lot. Similarly अपनी हॉबीज़ को उभारो. It's very important. अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, खेलो, स्पोर्ट्स खेलो. हॉबीज़ का मतलब ये नहीं कि गाना बजाना और नाचना यही सब होता है, या पेंटिंग करना. It could be anything, but enhance करो उसे. What else? फिनिश? सब हो गया? सबको पता चल गया क्या करना है? हाँ जी, पूछिए. हाँ जी जयदीप. क्रूज लाइन में कैसे जाए? यार बहुत आगे की है, बट बैठ जाइए, मैं बताता हूँ. क्रूज लाइन
शिप्स होती है, बड़ी क्रूज़ होते हैं जहाँ पर यूजली हॉलीडेइंग के लिए लोग जाते हैं, तो लंबे समय तक का कोई ट्रैवल टाइम होता है, कोई 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, कोई 6 महीने का। कमर्शियल भी होता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी होता है। उसके अंदर जॉब ऑफर्स निकलती हैं एंड यू गेट द जॉब, इट्स दैट सिंपल। यूजली दे लुक फॉर एक्सपीरियंस। यूजली आई थिंक इफ आई एम करेक्ट, फ्रेशर्स नहीं जाते क्योंकि दे नीड टू नो द ट्रेड एंड इन एंड आउट ऑफ द क्रूज लाइनर इन ऑर्डर टू गेट। बट क्यों पूछा क्रूज लाइनर का? सर एक्चुअली मेरे को हिंदी का कोर्स हो गया, हाँ मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा अपना काम से। ठीक है, फिर ना थोड़ा टफ होता है, हार्ड होता है, क्योंकि आप पानी के सतह के नीचे होते हो, तो आप बाहर कोई खिड़की नहीं, कुछ नहीं दिखता भी है तो पानी दिखता है, और 10-10 दिन, 15-20 दिन, 25 दिन, महीना हो जाता है, फिर आप पोर्ट पे उतरते हो तो देखते हो वरना सारा टाइम। सो इट्स टफ, रिवॉर्डिंग बिकॉज इट पेज यू वेल। ऐसा कुछ नहीं यार, हाउ मच इज़ नीडेड वो डिपेंड करता है उनकी किस लेवल पे वो हायरिंग कर रहे हैं। पर 4, 5, 6 साल, 7 साल तो आप अच्छा काम करो, सीखो, वरना आप ही वहाँ पे परेशान हो जाओगे। वो आपको टिकने नहीं देंगे। अगले पोर्ट पे टाटा बाय बाय थैंक यू। सो यू हैव टू लर्न योर ट्रेड, यू नीड टू बी। एक होता है लर्निंग कर्व, जब आप के शुरू के 2, 3, 4 साल लर्निंग कर्व है। 5 साल जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड लर्न एज मच एज यू कैन। बी अ स्टूडेंट ऑल योर लाइफ, बट 5-6 years शुरुआत के तो जस्ट लर्न एंड देन डिलीवर। व्हाट एल्स? किस के दोस्तों के एडमिशन नहीं हुए? मैडम आप हमेशा आधे पे क्यों रुक जाते हो? फिर एकदम से ऐसे पता नहीं है कोई दोस्त आपका जिसका एडमिशन नहीं हुआ? सबके हो गए? हाँ जी, आपका नहीं हुआ? कहाँ है तेरा दोस्त? कहाँ है तुम्हारा दोस्त? पता ही नहीं क्या करेगा, और जो भी यहाँ आना चाहता है तो एडमिशन दिया, 2-4 लिया, और वो नहीं आया। तो कॉल करके बुला ना। कॉल किया हमने, 4-5 बार किया तो बता रहे लेट हो गया। तो क्या हो गया? Why I am saying this? Sit down. It is very important कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, सिर्फ अपनी नहीं, अपने दोस्तों की भी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ इस दौरान भी नहीं, लाइफ में भी आगे। योर गो टू पीपल, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी या जब आपको ज़रूरत है, आपके यार दोस्त आएंगे। समटाइम्स यू नीड टू पुश योर फ्रेंड्स, अबे कर ना यार, कोई बात नहीं, यू आर गुड, आई नो, इट्स ओके, इट्स फाइन, वट एवर दैट यू नीड टू हियर, दे विल से इट. So be that friend also. There are a lot of kids who are shy, who don't know where to go, what to do. Get them for career counseling. Get them to the college. Let the faculty speak to them. Even if you have to call them 5 times, so be it. कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप चाहोगे ना कि आपके दोस्त आपकी मदद के लिए आएँ. वो कब आएंगे? जब आप पहले उनकी मदद करोगे तो यू सेट अ प्रेसिडेंस ना कि भाई देख, तेरे को कभी तू तकलीफ में था, तू कंफ्यूज था, तो मैं था तेरे लिए या मैं थी तेरे लिए. सो बी दैट पर्सन टुडे, सो दैट कल को वो भी वही करे, यार इसने मेरे लिए कहा था, आई विल ऑल्सो बी देयर फॉर हर और आई विल ऑल्सो बी देयर फॉर हिम. सो डू दैट, ब्रिंग देम हेयर, वी आर जस्ट स्टार्टिंग. If anybody has any doubt, make them talk to the faculty. It's a very high demand for good quality professionals in our industry, और अभी supply कम है, demand बढ़ती जा रही है. So it's a great time to join hotel management. Join it with a good institute like GNHM. Okay? All right, guys. Wishing you all the very best to start of a fabulous journey. Remember, college life never comes back, so enjoy, work hard, party harder, and be responsible. All right, thank you.